परफेक्ट. सो एज फार एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज कंसर्न, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा, एलिमेंट कहा, उसका फिजिकल बेसिस वाज नथिंग अदर देन क्रोमोसोम. The physical basis of heredity was nothing other than chromosome. That we agree. But उस क्रोमोसोम को जब और अनवाइंड किया गया, बिकॉज क्रोमोसोम जैसी कोई बॉडी सिर्फ दिखती है, एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कोई स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर को जो बॉडी हमें दिखती है, कलरफुल बॉडी, that colorful body, if analyzed more and deeply, then we found it is nothing other than genes. But what that gene is actually, if analyzed, we come to know, scientific community came to know, it is nothing other than the DNA. And if we go for chemical structure of DNA, we found nothing other than the polynucleotide. And this polynucleotide is actually the many units of nucleotide on which we have solved so many questions. Am I right, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Perfect. sir. So today we need to switch the next part, and as far as our NCERT is concerned, the next part of that molecular biology is packaging of DNA helix. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. पेज Yes, नंबर 97 का सारा पार्ट डिस्कस हो गया है, एंड आई होप कि salient features of that DNA you are well aware. किसकी वजह से इक्विडिस्टेंस होता है, किसकी वजह से कॉइलिंग होती है, किसकी वजह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्टेबिलिटी कौन देता है, एवरीथिंग you know. 101% there will be question from this page number 97. As far as 98 is concerned, I already told you and I requested you, I suggested you to draw a table. Am I right? Yes. Yes, sir. C, D, Z, different types of DNA, जिसका values मैं ही आपको बता दिया था. आयुष, am I right? हाँ sir. Perfect. So बच्चों, comes to the packaging of DNA. Comes to the packaging. बात को समझेगा. मैं बताता हूँ और लिखवाता भी हूँ. Don't worry about it. मैं लिखवाता भी हूँ statement, but पहले समझिए. Just we'll go through data. उस डेटा को समझते हैं और फिर सोचते हैं कि इतना बड़ा कोई थ्रेड कैसे न्यूक्लियस में अरेंज हुआ होगा या अकोमोडेट हुआ होगा. सो एज फार एज द डेटा गिवन इन एनसीईआरटी, taken the distance into consecutive base pair, that is 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated by multiplying the total number of base pairs, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस और ऐसे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यदि इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो वो इट कम्स टू अराउंड 6.6 into 10 to the power 9 base pair into 0.34 into 10 to the power minus 9 meter per base pair. It comes to the approximately 2.2 meter. लगभग 2.5 मीटर का एक धागा you are trying to accommodate in a nucleus of a cell. That cell which cannot be seen by naked eyes. That cell which cannot be seen by naked eyes, you are trying to accommodate. लगभग 2 से 2.5 मीटर का धागा, a thread of 2 to 2.2 or 2.5 meter. It is practically tough to accommodate such a thread in a nucleus, which is hardly of few nanometers diameter. So definitely a cell or nucleus has developed a system or an organized structure in which the long thread or polymer can be winded up. So उसको कैसे wind किया गया होगा? So उस wind up मॉडल को समझने के लिए मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं is nucleosome model. Just listen, pen down and listen carefully. मुझे अच्छे से याद होगा, आज से महज कुछ सालों पहले तक, तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, तो आपकी एज ग्रुप से समझ सकती है.
बट आपकी एज तक तो शायद वो सीडीबीडी का कंसेप्ट भी बहुत वीक हो चला था. बट स्टिल आई होप सम ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड अ सीडी बॉक्स. एनीवन ऑफ यू हैव सीन सीडी बॉक्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक मुझे पता है एक सीडी बॉक्स में मैंने जितने सीडी बॉक्स देखे हैं, छोटा सा बड़ा इजी सा सीडी बॉक्स होता है, नीचे बेस होता है और बीच में डंडा लगा रहता है और सीडी के बीच का जो होल है वहां से उसको डालते जाओ तो पाइल अप होती जाती है. Am I right? ऐसी सीडीज जो है पाइल अप होती जाती है. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लास्टिक से कवर कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ सीडी बॉक्स. व्हेनेवर इट इज नीडेड यू ओपन द बॉक्स, उस नंबर की सीडी को आप निकालते हैं और बाकी को सीडी को फिर अंदर डाल देते हैं. In that way, that particular one axis holds a complete cycle of CD. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So if we if we took it into consideration कि ऐसा कोई एक बॉक्स हो सकता है जो नंबर ऑफ सीडीज के राउंड्स को पाइल अप करके कॉम्पैक्ट करके बक्से में बंद करने लायक बना सकता है, तो ऐसा ही मुझे वो सीडी के जैसा एक धागा यदि मैं कॉइल स्ट्रक्चर में आपको दे दूं, फर्क बस इतना है कि आपको किसी वो सेंट्रल एक्सिस के को सेंटर में रखते हुए नहीं करना है, तो उस एक्सिस को साइड में रखते हुए इससे धागा लपेटना है. सीडी बॉक्स में वो सेंटर में होता है और आप ऐसे पाइल अप करते हैं उसको, और मैं यहां कह रहा हूं कि इसको साइड में आपने रख दिया और इसको धागा लपेट. सो वो किस तरह से लपेटा जाएगा, किस तरह से होगा, फॉर इमेजिनेशन मैंने आपको सीडी बॉक्स बताया. फॉर इमेजिनेशन यू कैन ऑल्सो कंसिडर, आई होप यदि किसी के घर सिलाई मशीन हो तो सिलाई मशीन में धागे का रील आपने देखा हो. डू यू नो दैट रील? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस रील में यदि आपने कभी बच्चों मम्मी पापा की मदद की होगी और कभी लाया होगा बाजार से खरीद कर, तो बहुत इजीली यू कैन ऑब्जर्व कि उस पर ना एक अजीब सी 8 अल्फा मतलब 8 के फिगर में धागे लपेटे होते हैं लाइक दिस. हैव यू एवर ऑब्जर्व? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यानी कहीं ना कहीं एक धागे का अरेंजमेंट बताता है जिसमें ट्विस्टिंग आती है. अब रेजोनाइट एवरीवन नोस, पाठक सर के सारे स्टूडेंट जानते हैं कि ट्विस्टिंग तो तब आती है किसी स्ट्रक्चर में जब पॉलीमर बहुत ज्यादा लंबा हो. हमारा राइट? अदरवाइज दोस्तों वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो, वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो, सारे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में यदि बढ़ने लगता है तो ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है. इसीलिए तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बनने लगती है. राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो फॉर श्योर हुआ कि यदि उस धागे को लंबे से 2-2.5 मीटर के धागे को किसी महज कुछ नैनोमीटर डायमीटर के न्यूक्लियस में अकोमोडेट यदि आपको करना है तो ट्विस्टेड तो करना पड़ेगा. इसलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करवाया जाता है फॉर जस्ट फॉर एन अजम्पशन. पतंग को उड़ाने वाले जो धागे का रील होता है, वो जो मांझा जिसमें लपेटा जाता है, वो मांझा या वो सिलाई मशीन की वो रील या वो सीडी बॉक्स कुछ इसी तरह से होते हैं जिसके सबके सेंटर में एक एक्सिस है. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. मेरा सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है डीएनए मॉडल में, मैं वो एक्सिस सेंटर में ना बताकर साइड में बता रहा हूं और फिर इससे लपेट. फिर आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लपेट पाएंगे, अब सेंटर में होता तो समझ में भी आता, साइड में आपने यदि कर दिया तो लपेट के वो स्टेबल कैसे रहेगा? तो यार उसको स्टेबिलिटी देने के लिए मैं उसमें बॉन्डिंग कर देता हूं ना, मैं उसके बीच बॉन्ड्स बनवा देता हूं. ऐसा ही एक धागा मैं आज आपको उस मॉडल को बताने जा रहा हूं जो धागे को लपेटता है और जिसमें वो सेंट्रल एक्सिस कौन, उसको सपोर्ट करने वाले स्टोन्स कौन, वो मैं बताना चाहता हूं. आई होप थोड़ा सा कुछ ग्रैब पाए होंगे कंसेप्ट आप. मैंने आपको सिंपल बताना है बच्चों, न्यूक्लियोसोम मॉडल. न्यूक्लियोसोम मॉडल. आई होप विजिबिलिटी इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूक्लियोसोम मॉडल में यदि मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं लाइक ई कोलाई व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डीएनए स्ट्रक्चर इतना नहीं है, सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर है. तो
वो जो स्कैटर्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, वो स्कैटर्ड मटेरियल एक बाउंड्री से कहीं से ऑर्गेनाइज्ड है. इट इज नॉट मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन होती तो वो यूकैरियोटिक हो जाता. वो स्कैटर्ड थोड़ा सा अरेंज है, उसी का नाम कह दिया गया न्यूक्लियोइड. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, बिकॉज इसके आगे सफिक्स क्या लगा हुआ है? Oid. Oid. Perfect. But in eukaryote, which is a complicated structure, बहुत long thread रखता है, उसको DNA is negatively charged और positively charged? Negatively. Negatively. Priya, why it is negatively charged? Because of phosphate group. Perfect. मतलब मुझे ये तो पता है कि negatively, मैं समझा रहा हूं सर, लिखाने के बाद आपको लिखाऊंगा. DNA is negatively charged. Perfect. अभी Yes. जब ये जो DNA नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिवली चार्ज को होल्ड करने के लिए, टू होल्ड, therefore to hold we need what? Positively charged molecule. Agree? Yes. Yes. Dr. Das, Amrita, agree? Athar Parikh, Athar Gangurde, Yes, sir. Darshita Jain. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that positively charged particles or charged molecule, I should say, it is a protein. It is a protein, and that protein is what? Histone. Histone. Histone protein, which is Swamiji of 5 types. H1, 2, H2A, H2B, H3, and H4. 5 types of histone. H1, H2A, H2B, H3, and H4. Agree? तो ये जो 5 टाइप के हिस्टोन्स मैंने बताए बच्चों, H1, H2A, H2B, H3, and H4. In this H1 is a central histone जो एक्सिस को बनाता है, जिस एक्सिस की मैं बात कर रहा था. और इस एक्सिस के चारों तरफ, फिर चारों तरफ नहीं कहना चाहिए, एक्सिस से एक तरफ एक राउंडेड, एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनता है. इस एक्सिस से एक तरफ, इस एक्सिस से एक तरफ, इसको मैंने बना दिया H1. अब देखिए, मैं बची हुई 4 यूनिट्स का डाइमर बनाता, बची हुई 4 यूनिट्स का डाइमर. सो आई शुड से H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. What I should do? Like this, like this, like this. Understood? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. You understood? Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. बच्चों समझ में आया? ये H1 जो है, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, H1 इन सबको होल्ड किए हुए, H1 इन सबको होल्ड किए हुए. तो ऐसे ही एक यूनिट जो ऑक्टामेरिक यूनिट होती है, सीधा सीधा सा नीट का सवाल कि which of the following histone is not involved in octamer formation? What will be the answer? H1. H1. रेस्ट जो 4 यूनिट्स है, इनका डाइमराइजेशन हो जाता है. H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, and H4, H4. तो वो ऑक्टामर बनाते हैं. और ऐसा ऑक्टामर इसके साथ अटैच होता है, फिर एक और ऑक्टामर, फिर एक और ऑक्टामर, और ऐसे ऑक्टामर अटैच होती है. तो साइंस तो ऐसा कहता है कि ये जो सेंट्रल वाला H1 है, ये लगभग 160 to 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए को ऑर्गेनाइज कर सकता है. बात को समझिएगा, क्योंकि एक H1 के पास फिर यहां पर एक ऑक्टामर आएगा, फिर एक ऑक्टामर आएगा, यानी ऐसे ऑक्टामर्स तो आते रहेंगे और इससे H1 से जुड़ते रहेंगे. जब ये ऑक्टामर्स इससे जुड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली यू शुड इमेजिन
कि this first octamer OCT1 should link with the OCT2, should link with the OCT3. Agree or not? Yes. Yes. Right? Yes. एक थ्रेड यदि आप लपेट रहे हैं तो दिस थ्रेड इज कंटिन्यू विद दिस कंटिन्यू विद दिस ना, और इन सबको एक H1 ने संभाल के रखा। जब इन सबको H1 ने संभाल के रखा है तो कहीं ना कहीं इसके बेस पेयर्स, इसके बेस पेयर्स और इसके बेस पेयर्स, तीनों के बेस पेयर को H1 ने अकेले ने होल्ड करके रखा होगा। अथर्व पारीक, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. So what I mean that if this octamers, all these three octamers can join with this H1 alone, can join with this H1 alone, in that way, probably this individual octamer may hold almost 60-60 or 70-70 base pairs. Agree? Agree? Yes. Yes, sir. Right? Right? Then only it single H1 can hold around 200 base pairs, na? Everyone, yes or no? Ayush, Gauri, Harshal, Sir, वापस Kajal. बता. What I mean to say, suppose I am in front of camera, I am this H1. I am H1. One octamer to my chest region, one octamer to my stomach region, one octamer to my pelvic region. So in that way, I alone can hold, if 160 to 200 base pair, then each octamer must have 60 to 70 base pairs. What do you think? Yes, sir. Yes. So if I am telling you that this is 60 base pairs, 60 base pairs, 60 base pairs, so somehow what I can conclude that these octamers should be linked with each other, with some linker DNA. Agree? Yes, sir. Yes, sir. भाई एक थ्रेड ऐसा थोड़ी हो रहा कि ऑक्टामर बनाया कट कर दिया, ऑक्टामर बनाया कट कर दिया। रील में तो धागा पूरा ही निकलता है ना, पतंग के मांझे में पूरा ही निकलता है ना। तो मैं यदि ऐसा कह दूं आपसे कि ये लिंकर है, तो यहाँ इट शुड बी द लिंकर डीएनए, which is science says almost 10 to 12 base pairs. So इसलिए इसको 160 to 200 कहा जाता है, क्योंकि 15-15, 20, 10-10, 20, 12-12, 24, 25 बेस पेयर्स तो लिंकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इन टोटलिटी व्हाट आई से कि लगभग 200 बेस पेयर एक अकेला H1 होल्ड कर सकता है। सो नीट का क्वेश्चन आता है, द अलोन H1 कैन होल्ड इफ रेंज इज गिवन टिल 200, तो 180 to 200, 160 to 200 डजंट मैटर, बट अकेला यदि फिगर दिया गया होगा तो अलोन H1 कैन होल्ड ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स। आई होप थोड़ा समझ में आ रहा है। Yes, sir. कोई बहुत टफ नहीं है बच्चों, मैंने बढ़िया से आपको बताया। अलोन एक्सिस डाइमर दैट फॉर्म्स ऑक्टामर, और ऐसे ऑक्टामर्स हो सकते हैं जिसमें एक अकेला H1 कैन होल्ड हाउ मेनी बेस पेयर्स? 200 बेस पेयर्स। और 10 से 12-15 तक के क्या हो सकते हैं इसमें बेस पेयर के? लिंकर डीएनए। सो नाउ पॉइंट नंबर 1 हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। पॉइंट नंबर 1 लिखते चलेंगे मेरे साथ, मैं बोलता चल रहा हूं, मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ना लिख पाया तो बोल के करते हैं। लिखते हैं, with the consideration of distance between two base pairs, with the consideration of distance between two base pairs and total number of base pair, and total number of base pairs,
it is expected that the long DNA thread must be a folding and compact structure. Must be a folded and compact structure. Must be folded and compact structure. Noted? Yes, sir. Second point. In prokaryotes, since DNA is found in nucleoid structure, therefore doesn't require any special protein to hold the DNA. I hope you understood. Disha, Diya, Gauri, Siddhi Patel, Yes, sir. Natasha. Natasha, are you there? Yes, sir. And I hope you are getting my words. Yes. Perfect. So point number 3. In eukaryotes, the long DNA thread negatively charged. Long negatively charged DNA thread is held by what? Held by Histone protein. positively charged histones. Number 4, histones are H1, bolo, H2A, H2B. इसको मिटाऊं और फिर मैं और स्टेटमेंट्स आपको लिखूं. I hope you understand, my dear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, doctors. Doctors noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Just sharing the image and so अभी प्रिया मैडम खुश तो बहुत होंगे आप. हाँ सर. इस बात से लेकिन 1 week off है ना. क्या बात है, पूरे 1.5 साल बाद 1 हफ्ते का गैप. काय वनवे साहेब, चांगले सर. चांगले आहे ना. हाँ. कॅन्सल करावे.
सांगा की कॅन्सल करावे. अरे कॅन्सल करावे का? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. स्वामी जी के तो पापा आए हैं तो मौज है फिर अभी तो स्वामी जी. Yes, sir. मम्मी की डांट सुन सुन के क्या पिताजी का थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा. फादर्स डे पे आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया हो गए, है ना? Yes. क्या बात, नसीब वाले हो दोस्त. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. कितने पॉइंट्स हो गए थे अपने? 4. 4 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5. बच्चों एक चीज मैं बता दूं, जो मैंने न्यूक्लियोइड मॉडल बताया ना आपको, उसमें न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, एनएपीज. न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, एनएपीज. कोई अलग सा प्रोटीन नहीं, बट ठीक न्यूक्लियोइड से एसोसिएटेड प्रोटीन्स है, वो होल्ड करके रखें. पॉइंट नंबर 5. पॉजिटिव हिस्टोन आर रिच इन. किसी ने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी तो आंसर तुरंत देगा. आर रिच इन Arginine and Ar- lysine. Lysine and arginine. number 6. Out of 5 stones, H1 is H1 forms, not H1 is. H1 forms main axis and rest 4 are present in pairs. I should say dimers. This paired H2A, H2B, H3, H4 into 2 forms octamer, forms histone octamer called new body. Forms histone called new body, NU, new body, or core of nucleosome, or core of nucleosome. DNA of approx 200 base pairs forms a nucleosome. H1 attached with लिंकर डीएनए. अब लिंकर डीएनए क्या है समझ में आया? किसको लिंक करता है? किसको लिंक करता है? Perfect. Two octamers. Okay.
चलिए next point and last point. Hydrogen bond. Hydrogen bond in histone peptide and phosphodiester backbone. Phosphodiester backbone provide an additional stability to the structure. Okay, I'm going to share a न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन्स का आपको एक शेयर करता हूं स्ट्रक्चर. कैसे वो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और कैसे होता है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता हूं. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Figure 6.11, 6.12, 6.13, 6.14. Less complicated to the most compact and most condensed structure. 6.11 to 6.14. क्योंकि 14 जो देखा गया है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, सारे ही वैसी जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीड्स कैसे बनती है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं कि थ्रेड से कैसे वो बीडेड स्ट्रक्चर दिखता है. जहां प्रोकैरियोट्स के केस में दिखाया गया है वहां पर एक नैप प्रोटीन दिखाया गया है. नैप क्या नाम बताया था अभी? न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोटाइड नैप न्यूक्लियोटाइड Nucleotide एसोसिएटेड associated protein. न्यूक्लियोटाइड नहीं दोस्तों, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स ये बैक्टीरिया के केस में है. न्यूक्लियोइड मतलब प्रोकैरियोट्स. सो दैट इज नैप, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. ऊपर भी लिखा ही हुआ था उसमें. एनीवेज, दूसरे में एक जनरल न्यूक्लियोसोम बताया गया है. एक एक्सिस आपको दिख रहा है H1. Am I right? Am I right? Yes, sir. और उसने फिर होल्ड करके रखा है ये डीएनए को. परफेक्ट. और उन्होंने एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाया. वो ऑक्टामर स्ट्रक्चर कैसे बनाया वो भी दिखा रहे हैं. H1 दिख रहा है पिंक कलर में. Yes, sir. और एक डाइमर आपको दिख रहा है H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. और ऐसे एक को उसने होल्ड करके एक न्यू पार्टिकल बनाया, न्यू बॉडी बनाया. दैट इज द stone octamers, core of 8 stones, which is called as core of nucleosome. और ये सब मिलकर लगभग 200 बेस पेयर को होल्ड किए हुए हैं. तो ये इतना लंबा थ्रेड को स्टेबिलिटी देने के लिए जरूरी है
और उसमें एडिशनल स्टेबिलिटी यदि कोई दे रहा होगा, दैट इज नथिंग अदर देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द डीएनए। और जो हिस्टोन है, क्योंकि प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अपने कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, अपने कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ये सब एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं। इसीलिए तो अपन ने पढ़ा था ना कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी, ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अंडरस्टूड? तो एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए हिस्टोन के अपने कुछ बॉन्ड्स हो गए। और ये भी बच्चों बहुत ज्यादा जब फाइन हो जाए तो कैन यू इमेजिन बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे एक एक न्यूक्लियोसोम वहां पर बीडेड स्ट्रक्चर देखने लगता है, which is I think given in your NCERT too, am I right? Yes, sir. Yes, sir. मुझे NCERT में स्ट्रक्चर दिया गया है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो अब समझ में आई वो बीड्स मतलब क्या होगा एग्जैक्टली इसने? व्हाट डू यू थिंक, वो बीड क्या होना चाहिए? Nucleosome. न्यूक्लियोसोम। वो इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते जाएंगे कि वो बीडेड स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। हमारा राइट? Yes, sir. एक जो स्ट्रक्चर आपसे शेयर कर रहा हूं उससे आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा कि माय गॉड, इतना जबरदस्त कंप्रेशन, इतने जबरदस्त कंप्रेशन के बाद वो स्ट्रक्चर हमें दिखता है। सी एन आई ओपनर एंड सरप्राइजिंग फिगर ना। मतलब एक क्रोमोसोम है, उसके धागे को देखो कैसे सिलाई उधेड़ी जाती है ना, जैसे जैसे सिलाई उधेड़ी जाती है, वो क्रोमोसोम को उधेड़ा गया। तो क्रोमेटिड जो थे वो 2 क्रोमेटिड निकले 700 नैनोमीटर के। कैन यू सी द फिगर दैट आई एम टेलिंग यू? Yes, sir. 1400, एक 1400 नैनोमीटर का आपको ऊपर दिख रहा होगा, 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम, राइट? द मोस्ट राइट। कैन यू सी द फिगर 1400? Yes, sir. Yes, sir. Know that, and everyone must know कि one chromosome has 2 chromatids. Am I right? Yes, So sir. by default, 2 chromatids must have 700 nanometer. And then chromatid जब उसको पूरा उधेड़ा गया तो उसको और खोल के देखा गया, तो धीरे धीरे और अनकॉइल्ड हुआ, और अनकॉइल्ड होते होते वो सुपर सोलेनॉइड दिखा 300 नैनोमीटर का। उसको और खोला गया तो 30 नैनोमीटर का सोलेनॉइड दिखा। सोलेनॉइड मतलब न्यूक्लियोसोम से थोड़ा सा और अनरैप करो, बड़ा मॉडल, ऐसे 8 से 10 सॉरी 6 न्यूक्लियोसोम मिलाकर एक सोलेनॉइड, 6 न्यूक्लियोसोम मिलाकर एक सोलेनॉइड। तो क्रोमोसोम से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से हिस्टोन, हिस्टोन के ऑक्टामर्स, और खोला गया तो फाइनली दैट इज डीएनए। उस डीएनए को कंप्रेस करते गए तो न्यूक्लियोसोम बना 10 नैनोमीटर का। उसको और कंप्रेस करते गए तो 30 नैनोमीटर का सोलेनॉइड बना। उसको और किया तो सुपर सोलेनॉइड बना। उसको और किया तो क्रोमेटिड बना। उसको और किया तो क्रोमोसोम बन गया। अब आया क्या दोस्तों समझ में? Yes, sir. हाँ, sir. परफेक्ट। यानी ये वो है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर आई शुड से, ये वो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये वो स्ट्रक्चर है जो उसमें दिखता है, किसमें? सेल डिवीजन के समय। बाकी टाइम तो दिखेगा ही नहीं। ये तो कंप्रेस ही तब होता है जब क्रोमोसोम्स के अंदर का कंटेंट बढ़ गया है। G1 S और G2 फेज हो गई। S फेज में डीएनए डबल हो गया, नॉट द क्रोमोसोम। द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल। आई होप यू रिकॉर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the amount of DNA gets double, not the number of chromosomes. So it becomes thick, and ultimately it seems, it visible, it appears as a chromosome, which is actually consists of 2 chromatids, which is actually consists of solenoids, super solenoids, which is consist of solenoid, which is consist of nucleosome, and ultimately it is nothing other than the DNA polynucleotide. Understood दोस्तों? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. यदि आप सब समझ रहे हैं तो मुझे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेज नंबर 99 का एक क्वेश्चन का आंसर मैं 2 मिनट का समय देता हूं। थ्योरेटिकली
how many such beads do you imagine are present in a mammalian cell? Just calculate and tell me the answer. एक बीड में कितने बेस पेयर हैं? 60, अरे 200 200. बीड 200. लिखा तो है ऊपर 200, 200, एक बीड में 200, और हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 into 10 to the power 9. परफेक्ट, 6.6 into 10 to the power 9. बस सिंपल है. मुझे आंसर बताइए. हाउ मेनी बीट्स यू एक्सपेक्ट? हाउ मेनी बीट्स यू एक्सपेक्ट? 3.3 into 10 raised to to power 7. 7. 3.3 into 10 to the power 7. 7. agree? agree दोस्तों? Yes, sir. ज्यादा बेटर दिख रहा था ना. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो दैट्स ऑल माय डियर. लिख दीजिए, आप कैलकुलेशन में लिख दीजिए, आंसर भी लिख दीजिए. I hope you perfectly understood that new model. Should I erase this? Yes, sir. Should I erase this? Yes, sir. Sir, No. सर एक हिस्टोन एक H1 पर 3 ऑक्टामर होते तो उस स्ट्रक्चर में एक ही ऑक्टामर क्यों दिखाया था? अरे 3 अक्टूबर किसने बोला? मैंने तो बताया आपको कि ऐसे हो सकते हैं. 3, 4, 5 ऐसे, तो वो तो एक के बाद एक लगे रहते हैं. अपन तो एक अक्टूबर को न्यू बॉडी कह रहे हैं, और एक H1 जो है ऐसे 200 को कंटेन की. मैंने तो कहा कि यदि ऐसे 3 हुए तो 60 होंगे. देवकी, यस सर. समझा? यस सर. Solenoid model of folding. Please write. Solenoid model of folding. इसमें एक डेटा मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चों. The beaded string is coiled to form solenoid. It's coiled to form solenoid. तो स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं हम लोग. क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के बाद सुपर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड और न्यूक्लियोसोम. क्रोमोसोम कितने मीटर नहीं, 140 nanometer. So this is 1400 nanometer. That 1400 nanometer chromatid, how much? 700. 700. The super solenoid should be what? 300 nanometer. Because यहाँ से you cannot predict the calculation कि ये ऐसे ही इतने ही होंगे उसको. तो super solenoids हैं, वो तो बहुत सारे structures बन सकते हैं. That will be 300 nanometer.
If it comes to solenoid, it will 30 nanometer. If it comes to nucleosome, then it is 10 nanometer. And this nucleosome come to the DNA, which is given 2 nanometer. 2 nanometer. तो ये एक फिगर ध्यान रखिए आप. और ये मेटाफिजिक क्रोमोसोम. मेटाफिजिक क्रोमोसोम. Noted? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. Should I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Page number 99. Done. Page number 99. Done. Yes or no? Yes, sir. पेज नंबर 100 पर बच्चों NHC प्रोटीन लिखा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stains light and are referred as euchromatin, but some are more densely packed. इस पूरी पैकेजिंग के दौरान कहीं पर लूज पैकिंग होती है और कहीं टाइटली पैक्ड होती है. Those which are loosely packed are euchromatin. Those are tightly packed are heterochromatin. Those are loosely packed, that are euchromatin. That are tightly packed, that are heterochromatin. Those which are, यदि स्टेनिंग करता हूं तो कौन ज्यादा डार्क स्टेन लेगा, हेटेरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? Heterochromatin. Because it is densely packed, right? Yes, sir. And those which are densely packed, heterochromatin, are genetically inactive. They cannot undergo the central dogma process. So that DNA which is tightly packed cannot transcribe into RNA and cannot be translated into protein. So the material, the gene, the DNA material which cannot be translated into protein are genetically inactive. So during this packaging, one is loosely packed, one is densely packed. Loosely packed, क्या नाम बताया? Euchromatin. Light stain and dark stain.
And नाम बोला आपने, that is euchromatin and this is heterochromatin. Which undergoes central dogma? Euchromatin. Euchromatin. Undergoes central dogma. Cell biology. Central dogma क्या कहता है? What is central dogma? Anyone? DNA to RNA protein. transcription and RNA to protein translation. DNA to RNA, RNA to protein. This is central dogma. And heterochromatin cannot. So, which one is genetically active? Euchromatin. Euchromatin. Should write it. Please note. Please note. Noted? Yes, sir. So, as we started with molecular biology, मैंने आपसे कहा था कि ओवरऑल आपको एक ही चैप्टर का बेसिक थीम समझना चाहिए और पहला क्लास मिस नहीं करना. उसका मॉलिक्यूलर बेस निकला था डीएनए. अब वो डीएनए क्या करता है, वो कैसे क्रोमोसोम बनाता है, वो तो देख लिया, पैकेजिंग. अब ये कैसे पता लगे कि वही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसा पता लगे कि वही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल डोग्मा के लिए. तो अब अपना अगला टॉपिक है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. पहले तो जेनेटिक मटेरियल क्या है इसकी खोज करते हैं, और फिर जब पता लग जाए कि ये डीएनए है तो कंफर्म करते हैं कि यही डीएनए. बात को समझिएगा. अब पहला टप्पा, इट्स ऑलमोस्ट 12:30, 15 मिनट अपने पास है. पहले ये पता करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है. ये पता लग जाए कि वो डीएनए है तो चेक करते हैं क्या वही डीएनए है, क्या ये सही है. और फिर जब पता लग जाए कि ये डीएनए ही है, तो जेनेटिक मटेरियल यही है, तो फिर पता लगाते हैं why it is better than the other genetic materials, why RNA cannot be a better genetic. यानी 3 क्वेश्चंस के आंसर अपने को मिलेंगे. प्रिया, which 3 questions? Is DNA the genetic material? No. First question was What is genetic material. What is the genetic material? Perfect. Priya. Yes, sir. Second, Lokesha, second question. Is DNA is a genetic material? Okay. Does the DNA is genetic material? Or third, Disha, third, Gauri, Prisha, third, Why DNA is Why DNA is genetic other material? genetic material? why DNA is a better genetic material. पहले इन 3 क्वेश्चंस को देखो, और जब बच्चों इन 3 क्वेश्चंस को मैं बता दूं, विजिबिलिटी क्लियर है स्वामी जी? Yes, sir. जब मैं इन 3 क्वेश्चंस को बता दूं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या डीएनए ही सच में जेनेटिक मटेरियल है, और फिर कि क्या डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ये जब हो जाए फाइनल कि हाँ डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर ये बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल करता क्या है, ये रेप्लिकेट कैसे होता है, ये रेप्लिकेट कैसे होता है, ये रेप्लिकेट होता है तो ये ट्रांसक्राइब कैसे होता है, और यदि ये ट्रांसक्राइब हो जाए आरएनए बना ले तो ये ट्रांसलेट कैसे होता है. एंड दैट्स ऑल. द चैप्टर इज फिनिश्ड. लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल. अब समझते हैं. हेडिंग डालते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मैं लिखवाने वाला नहीं हूं इसको, तो एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा. सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1, ग्रिफिथ ऑन माइस. मैं एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं. जस्ट डाउन योर पेन.
पेन डाउन कर लीजिए. जस्ट कीप योर कैमराज ऑन, कीप योर कैमराज ऑन एवरीवन. फॉर अ मोमेंट कीप योर कैमरा ऑन. Everyone, keep your camera on. Vishaka, Ayush, keep your camera on. Sharanya, yes. Aditi, okay. Rohit, perfect. Lokesha, okay. Pallanna, fine. Ved Bhandarkar, Devki, Sneha Bade, Sony, Janvi, perfect. Shraddha Pawar, okay. Swami ji, perfect. Diya Pardeshi is not. Okay, good. Everyone. Tanvi, perfect. Vaibhav, Vaibhav Katkade, good. Viraj Kotkar, Tejas Kavli, Yashwardhan, Atharv Gangurde, Samiksha Wagh. Okay, perfect. Siddhi Patil, Shubham Gavit. Fine. Gauri Airrao. Okay. Sanskriti J. Ugale, Disha. Perfect. You can switch off. आप बैठे हैं मतलब आप कैमरा बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो मुद्दे पर आते हैं. मैंने आपसे कहा कि मुझे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपको बताना. आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं. सब पेन डाउन कर दीजिए, पेन वेन नीचे रख दीजिए. एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिए. एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया. देखना कहीं गलती हो तो मुझे बताइएगा. डिप्लोकोकस निमोनिया. इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन, R2S3. परफेक्ट. या 2 और 3 में उलझाने के बजाय S और S स्ट्रेन और R स्ट्रेन. बात को समझेगा दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. शौनक, अथर्व. S स्ट्रेन जो है दोस्तों, S स्ट्रेन कहलाता है स्मूथ. और स्मूथ होता है इसकी एक स्लाइम लेयर की वजह से, जो कि नेचर में होती है टॉक्सिक. और इसकी वजह से इस स्ट्रेन को कहते हैं किलर स्ट्रेन, यानी पैथोजेनिक. यानी पैथोजेनिक लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं. दूसरा जो है वो रफ स्ट्रेन. सो नो कैप्सिड का जो कवरिंग है, टॉक्सिन कैप्सिड, ऊपर का जो कवरिंग है वो टॉक्सिन है, इसका नहीं. तो ये कैसा है? नॉन पैथोजेनिक. अंडरस्टूड. अब जब ये नॉन पैथोजेनिक, तो एक्सपेरिमेंट क्या किए गए? एक माइस लिया गया दोस्तों, केस 1. एक माइस लिया गया, उसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड बाई R. अच्छा, ये किलर है, मतलब ये क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है. ये क्या करता है? कौन सी डिजीज कॉज करता है? निमोनिया, जो माइस के केस में लीथल हो जाता है और उसकी डेथ हो सकती है. क्या लगता है, माइस को यदि R स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया गया, वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा. I hope everyone is agree. Yes. Yes. केस 2 लेते हैं, माइस लेते हैं, इंजेक्टेड बाई S. What do you think? Die. 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 Perfect. Third, एक और केस लेते हैं. अब की बार क्या किया? इंजेक्टेड बाई हीट किल R. क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बोलो. Die. लाइफ. अरे इतना क्या उसमें सोचना है यार.
जब वो जिंदा आर से कुछ नहीं हो रहा था, तो अब तो आर को मार दिया आपने, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. और केस लेते हैं, फिर माइस लेते हैं, इंजेक्टेड बाय हीट किल्ड एस, व्हाट डू यू Alive. एक्सपेक्ट? Alive. Alive. तो भाई ऐसा तो मरा हुआ है. पैथोजेनिक जो होता था उसको आपने किल कर दिया, तो क्या ही बीमारी फैला पाए? सो दैट विल मेक दैट माइस अलाइव. अग्री? Yes, sir. अब क्या करना है? माइस को इंजेक्टेड बाय एस that are grown on heat killed R. Sorry, उल्टा हो गया कुछ. Injected by S, injected by R, heat killed. Alive. Alive. Die. ठीक है, बिल्कुल ठीक का रुद्राक्ष. आई एग्री, दैट शुड बी अलाइव ना यार. सिंपल कंसेप्ट है. जब आप आर को लाइव कंडीशन में दे रहे थे तो वो जिंदा हो रहा था, तो आर को जब आप किल्ड कंडीशन में दोगे तब भी जिंदा रहेगा. अग्री? S, which is pathogenic, when it is injected alive, then mice was dead. When it was killed, mice was alive. So simple सी बात है, जब ये जिंदा में नहीं मार रहा था तो मरे में क्या मारेगा? ये जिंदा में मार रहा था, मरे में नहीं मार रहा था. तो अब की बार आपने आर का ही दिया, लेकिन जिस पर ग्रो कराया वो हीट किल्ड एस था, तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि हीट किल्ड एस अलाइव रखता है, आर वैसे ही अलाइव रखता है, तो दोनों ही अलाइविंग फैक्टर थे. तो माइस डेड क्यों? माइस डेड क्यों है? जानवी, महक, डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? अरे डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? Yes. It should be what? It should be Alive. alive. Natasha, Samiksha, Snehal, Shraddha, do you understand? Yes, sir. This was the big question mark, जिसके लिए ये पता लगाया गया कि यार ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ये जो सेंट्रल डोग्मा है, इस सेंट्रल डोग्मा में तीन ही तो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं. एक डीएनए है, एक आरएनए है और एक प्रोटीन है. तो इसमें देख लेते हैं टेम्परेचर पर ज्यादा कौन जिंदा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकाला गया कि इस एस्प्रिन की हीट किलिंग के दौरान कुछ मटेरियल ऐसा रह गया होगा जिसने आर को भी पैथोजेनिक बना दिया होगा. अग्री? Yes. Agree? Yes, sir. This arsenic, since it is non-pathogenic, so called as non-virulent. And this is called virulent. So, what was the conclusion? भाई मेरा तो conclusion यही निकलता है. Conclusion: during heat killing of what? बोलो, of what? S. S. Something virulent remain. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Alive that make or transform and what? A non-virulent into Virulent. Virulent.
अग्री दोस्तों? Yes, sir. Yes, अब sir. सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वो क्या बच गया हो गया। तो 3 ही तो मॉलिक्यूल थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो पहले तो ये लगाए ना कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या भाई, कुछ उसमें ऐसा रह गया जिसके जेनेटिक मशीनरी ने नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट बना दिया, जिसकी जेनेटिक, क्योंकि आर जो ग्रो किया होगा, आर बैक्टीरिया, दैट आर बैक्टीरिया वाज ग्रोइंग ऑन एस. So when R were producing their progenies, some genetic material transformed and made them virulent. What was that genetic material? So Griffith just assumed that it should be DNA because because मैं नहीं बोलता हूं, क्या लगता है उसने क्यों ऐसा सोचा होगा कि वो डीएनए है? Why not RNA and protein? हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाता है प्रोटीन। जोर से, जोर से। टेम्परेचर पे प्रोटीन खराब हो जाता है ना सर। परफेक्ट, कौन बोला? वैभव। वैभव कातकड़े, बहुत बढ़िया। बिकॉज आरएनए और प्रोटीन तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बल्कि डीएनए कई बार 90-95 तक चल, वैसे डीएनए भी नहीं करता, बट एज कंपेयर टू आरएनए प्रोटीन डीएनए ज्यादा करता है। तो ही जस्ट सपोज दैट डीएनए कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट फाइनलाइज। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस एक्सपेरिमेंट को फाइनल एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं करती। हाँ, यस, इट सपोज, इट डिस्क्राइब दैट डीएनए कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल। परफेक्ट। अब मैंने को जिस नोट पे समझाया है 101% I can expect an understanding of second experiment MacLeod-McCarthy from your side. अगली बार मैं नहीं बताऊंगा, मैक्लियोड-मैककार्टी ने इन तीनों को समझने के लिए क्या किया होगा, आप मुझे बताएं कि वो मटेरियल डीएनए ही है, ये बताने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा होगा, ये आप मुझे बताएं। अग्री दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको ये बता दिया कि वो इस कंक्लूजन तक आ गया कि इन तीन में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, इन तीन में से कोई एक। अब वो डीएनए ही है, ये बताने के लिए और दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 2, एक है मैक्लियोड-मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड एक है हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, दैट आई विल टेल यू, बट ब्रेक के बाद, है ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट को समझने के लिए आपका भी तो इंटरेस्ट जरूरी है। तो बच्चों पढ़िएगा, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या, हालांकि वी हैव मोर 15 मिनट्स ना, हाउ मच टाइम वी हैव? मोर 15 मिनट्स। Yes, sir. sir. तो मैं हिंट एंड क्लूज देता हूं, हिंट एंड क्लूज देता हूं। जब ये बैक्टीरिया, जब आर बैक्टीरिया वाज ग्रोइंग ऑन एस, बात को ध्यान से सुनिएगा, when R was growing on S, तब मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएज डाल दूं, फिर चेक करूं। फिर मैं ड्यूरिंग दिस ग्रोथ मैं आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज डाल दूं, फिर चेक करूं, फिर इंजेक्शन दूं। फिर एक बार मैं डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज दूं, फिर इंजेक्शन दूं। एनीवन गॉट इट माय पॉइंट? एनीवन? नहीं समझे? लोकेशा समझी कि नहीं समझी? कुछ पूरा नहीं सर। पूरा नहीं समझी। मैं ओमकार से उम्मीद करूं, ओमकार वागतकर, आर यू देयर? ओमकार, वैभव बच्चाओ, यस ओमकार, कुछ मैं उम्मीद करूंगा आपसे, थोड़ा सा आपका लॉजिकल, मैंने देखा है पार्ट ज्यादा तेज चलता है। प्रथमेश, रोहित, कृष्णा, आयुष, लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं प्लीज। तनिष्का एक्सपेक्ट, तनिष्का। हाँ सर, बट सर पूरा नहीं समझ। In fact, I should expect from some more students. स्नेहल, चलिए आयुष बताना चाह रहे थे, आयुष टेल मी।
सर जब हम लोग डीएनए डालेंगे तो फिर डीएनए नहीं रहेगा, तो फिर वो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट ही रहेगा। अगर डीएनए को हम बेसिस मानते हैं कि उसकी वजह से आर में अगर चेंज हो रहा है, तो फिर अगर डीएनए नहीं है तो फिर आर में चेंज होगा नहीं, तो फिर आर नॉन वायरुलेंट रहेगा। चूहा क्या रहेगा, जिंदा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा। जब डीएनए डाला और जब इंजेक्शन दिया तो चूहा जिंदा रहेगा, इज इट? हाँ सर, इज इट? जिंदा रहेगा। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। सिंपल बच्चों, और 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाने, 3 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ए, बी एंड सी। मैंने क्यों नहीं इसे इरेज किया? While you are injecting this step, while you are injecting इस स्टेप के दौरान ये वाला एक्सपेरिमेंट एंड फिफ्थ वन, while you are injecting and growing R on S, while growing, उस ग्रोथ करते समय उस पेट्री डिश में डाल दीजिए थोड़ा सा पहले प्रोटीएज, ताकि यदि आपको ये लग रहा है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो लो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला मटेरियल डाल दिया, प्रोटीन की कहानी खत्म। प्रोटीन अब है ही नहीं उसमें। अब प्रोटीन नहीं, यदि चूहा फिर भी डाइड हो रहा है तो क्या प्रोटीन का रोल है या नहीं? नहीं। नहीं है। भाई चूहा क्यों मर रहा है, यही क्वेश्चन था ना, द बिग क्वेश्चन, व्हाई द माइस इज गेटिंग डेड। क्या मटेरियल है उसमें? प्रोटीन है। लेट चेक, प्रोटीन को मार दो पहले और फिर इंजेक्शन दो। अब उसमें प्रोटीन नहीं है और चूहा फिर भी मर रहा है, मतलब प्रोटीन का तो रोल ही नहीं है चूहे के मरने। अगली बार ले लो आरएनएज, स्टिल माइस डेड। क्या लगता है, आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। नो। डीएनएज, दैट इज अगेन, नहीं, नॉट डाइड, दिस टाइम इट इज जिंदा। alive. See, experiment देखिए, the beauty of the experiments and the brain, मतलब ये पता करना है यार कौन सा है, उसमें से उसको निपटाते चलो, प्रोटीन्स को खत्म करते चलो, प्रोटीन, आरएनए, आरएनएस, डीएनए, डीएनएस, और एक बार डीएनए खत्म तो वो चूहा जिंदा था यार। तो चूहा जिंदा तो 100%, जो उसको मारने वाला था आपने उसको मार दिया ना। See the beauty of experiment and the way I represent. Understood? Yes. सर लेकिन अगर प्रोटीनेज और आरएनएस डालेंगे तो आर स्ट्रेन का भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा ना, प्रोटीन और आरएनए। फिर से सर अगर उसमें प्रोटीनेज और आरएनएस डालेंगे तो जो आर स्ट्रेन है उसका भी डाइजेस्ट होगा ना, प्रोटीन और आरएनए। तो आर तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था ना प्रथमेश। लेकिन फिर आर भी जिंदा नहीं ना रहेगा उसकी वजह से, तो फिर वो आर जिंदा नहीं रहेगा, उसका प्रोटीन मटेरियल जिंदा नहीं रहेगा दोस्त। भाई हमें तो ये पता करना था ना, आर तो वैसे ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है प्रथमेश, am I right? हाँ। आर को मारो या जिंदा रखो, आर किसी भी हालत सूरत नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। डन। हाँ। अब आपको पता ये करना है कि एस का क्या मटेरियल है। भाई आर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना तो एस के उस मटेरियल से है जो टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो गया। अग्री? हाँ। पृथ्वी? यस सर। भाई आर से तो अपने को नहीं है, हम तो ये पता करना चाह रहे हैं कि एस का ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उस टेम्परेचर पर रह गया। में आर के किसी मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। यस सर। Got my point? Yes. Perfect. So this is the beauty of experiment, and this is the confidence of Pathak sir that you understood. मानवे साहब बरोबर बोल लो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, yes. डॉक्टर वागतकर? Yes sir. डॉक्टर देवरे, डॉक्टर जोशी, understood? Yes, sir. Perfect. So I hope there are no more questions. आपको मैक्लियोड-मैक्कार्टी समझना है, पढ़ना है, and then we will switch to Hershey and Chase. मैक्लियोड-मैक्कार्टी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इनफैक्ट ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आपने तो बस इसी से नोट करना है। आप अपने तरीके से लिखिए उसको, मजेदार एक्सपेरिमेंट अपने तरीके से लिखिए उसको। लोकेशा बन जाएगा? चलिए, परफेक्ट। So going to close the session. Any doubt? Final call. Any question in today's session?
Tanishka, No, sir, no doubt. perfect. Siddhi, No, sir. yes. Okay. Let me announce one thing. Aditi Das and Siddhi Patil, are you there? Yes, sir. Doctors, human reproduction or reproductive health? Human reproduction and reproductive health. You are confident for these topics? Yes, sir. Siddhi Patil and Aditi Das, are you there? Yes, sir. Siddhi Patil. Aditi तो ठीक है. Siddhi Patil. चलिए, Aditi, you are comfortable? Yes, sir. So if I am giving you a question paper, because it is needed to give your marks in the James, your school. So by tonight, will you be appearing in a test of hardly 30 questions? Okay, sir. Will it be fine? Yes, sir. Okay, so I'll give you the test on your personal WhatsApp number, and probably either it will be in Google Doc form, or I will take a Zoom session for 15 minutes, 30 minutes or 20 minutes, and you have to attempt those MCQs. Aditi, Okay, sir. Okay, sir. that will be a personal Zoom session. You have to keep your cameras on, and then the test will be conducted. Same will be Okay, with sir. Siddhi Patil. Same will be with Siddhi Patil. Okay, going to close the session. All the best.